مانسون بارشوں اور سیلاب کی بلوچستان میں تباہ کاریاں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، جھل مکسی میں نقصانات کا جائزہ لیا، کوچ علی مردان شمبانی میں متاثرین سے ملاقات، بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی یقین دہانی، وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت، ترجیحی بنیادوں پر میڈیکل کیمپ کے قیام اور راشن کی فراہمی کا حکم، ریلیف آپریشن کا دائرہ کار بڑھانے کی بھی ہدایت۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وفاق صوبائی حکومت سے بھرپور تعاون کرے گا، مشکل کی اس گھڑی میں ہم وطنوں کو مدد کی فراہمی میں کسر نہیں چھوڑیں گے، جاں بحق افراد کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان، مکانات اور املاک کے نقصان کے ازالے کے لیے بھی مالی معاونت کی جائے گی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا جیکب آباد کا بھی دورہ، چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز کی بارشوں سے ہونے والے نقصان اور امدادی اقدامات پر بریفنگ، وزیر اعظم کا جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ مانسون سپیل سے بڑے پیمانے پر فصلوں کو نقصان، بستیاں اجڑ گئیں، متاثرہ علاقوں میں پاک فوج، بحریہ، فضائیہ اور سول اداروں کا ریلیف آپریشن، متاثرین کو راشن اور ضروری اشیاء کی فراہمی جاری۔ ملک کے مختلف حصوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش کی پیشگوئی، نشیبی علاقے زیر آب آنے اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ عمران خان کو بیرونی سازش کے تحت مسلط کیا گیا، ملکی نظریاتی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے ممنوعہ فنڈنگ استعمال ہو رہی ہے، غیر ملکی ایجنڈے کی بات کرنے والے کے اپنے گھر کا کرایہ امریکہ سے آتا تھا، اتحادی جماعتیں ضمنی الیکشن میں مل کر حصہ لیں گی، سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان۔ عمران نیازی نے بال ٹیمپرنگ کے ساتھ فنڈ ٹیمپرنگ اور سیاسی ٹیمپرنگ بھی کی، فورن فنڈنگ کی مد میں غیر ملکیوں سے کروڑوں روپے ہتھیائے گئے، ہم نے معیشت بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤ پر لگا دی، عام انتخابات کسی کی خواہش پر نہیں، آئین کے مطابق مقررہ وقت پر ہوں گے، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ فائنینشل ٹائمز نے پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کو بے نقاب کیا، $250 ملین کی منی لانڈرنگ میں شریک شخص صادق اور امین کیسے ہو سکتا ہے؟ عارف نقوی نے عمران خان کو کالا دھن فراہم کیا، دوسروں کا احتساب کرنے والا شہزاد اکبر ملک سے فرار ہو گیا، وزیر مملکت مصدق ملک۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، الیکشن میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، عدالت انتخابات کو کالعدم قرار دے، مسلم لیگ نون کا درخواست میں موقف، بیلٹ پیپرز پر سیریل نمبرز درج کرنا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، آج تک ایسی کھلی دھاندلی نہیں دیکھی، معاون خصوصی عطاء اللہ تارڑ اور رانا مشہود کی میڈیا سے گفتگی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، بارہمولہ میں ایک اور نوجوان شہید، علیل حریت رہنما محمد یاسین ملک اسپتال سے تہاڑ جیل منتقل، مودی حکومت نے کشمیری عوام کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے، جابرانہ ہتھ کنڈوں سے تحریک آزادی کے جذبے کو دبایا نہیں جا سکتا، حریت قیادت۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، بین الاقوامی اور علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ تاریخ میں پہلی بار یکم محرم کو غلاف کعبہ کی تبدیلی، روح پرور مناظر، غلاف کعبہ کے لیے 670 کلو گرام سیاہ ریشم پر 120 کلو گرام سونے اور 100 کلو گرام چاندی کے تاروں سے آیات کشیدہ کی گئی، غلاف کعبہ کا وزن 850 کلو گرام ہے۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराते हुए इंतजामिया को मुतअद्दिद अहकामात जारी किए। रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज बरकी। मौसमियाती तब्दीली के असरात जाहिर होना शुरू हो गए। पाकिस्तान में इस वक्त रिकॉर्ड बारिशें हो रही हैं तो यूरोप, मशरिक वस्ती और वस्त एशिया में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पाकिस्तान में शदीद बारिशों से बलूचिस्तान समेत मुल्क के कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और नुकसान का फ़ज़ाई जायजा लिया। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैकब आबाद पहुंचे। वज़ीर आज़म को बताया गया कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 1 जुलाई से अब तक बलूचिस्तान में 467% ज्यादा बारिशें हुई हैं और मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म ने झलमक्सी के सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी फ़ज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आज़म गोट अली मर्दान शंभानी में सैलाब के मुतासरीन से मिलने के लिए रुके और उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। आप फिक्र ना करो, आपको पूरा इंशाल्लाह आपके जो जिनका घर गिर गया, जिनके नुकसान हुआ, उनको पूरी इमदाद मिलेगी इंशाल्लाह। आपकी पूरी मदद करेंगे। पूरे बलूचिस्तान में जहाँ नुकसान पहुँचा, ये बस हमारे नवाब साहब आप लोग के साथ हैं, हर इसको पता है, ये बस हमारे इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म ने मुतासरा गाँव में फौरी तौर पर मेडिकल कैंप के क़याम और दवाओं की फराहमी की हिदायत जारी की। मैं आपका खादिम शहबाज शरीफ और अफवाज पाकिस्तान मिलकर इंशाल्लाह, और ये हमारे साथी आपकी खिदमत करेंगे और जब तक कि आखिरी घर का जो गिरा है उसका हम नुकसान पूरा नहीं करते और आपके दोबारा आप अपने घरों में आबाद नहीं होते, इंशाअल्लाह हम चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मवेशियों के लिए वेटरनरी डॉक्टर की फराहमी की भी हिदायत की। जिसका प्यारा अल्लाह को प्यारा हो गया, सूबाई हुकूमत के अलावा 10 लाख रुपए देगी। इसी तरीके से जो घर जो सैलाबों में जो तबाह हुए हैं, हमने पक्के और कच्चे घरों की तमीज़ ख़त्म कर दी है। चाहे वो कच्चा या पक्का घर अगर 100% वो तबाह हो गया है, मस्मार हो गया है, तो उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। जुज़वी तौर पर जो घर तबाह हुए हैं, यानी 30% से उस ऊपर, उनको हम 2 लाख या उससे ज़्यादा देंगे। अच्छा। इसी तरीके से जो फसलें जो तबाह हुई हैं, माल मवेशी जो मारे गए हैं, उनके लिए अपना कमेटीज बन गई हैं। वफाक 4 कमेटीज बनी है वफाक के लेवल पर, जो चारों सूबों से और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ मुशावरत करके और सूबाई हुकूमतें भरपूर एक बड़ा सही वो सर्वे करेंगे। और 3 अगस्त को मैंने फिर मीटिंग इस्लामाबाद में बुलाई है, जो कि फसलें तबाह हुई हैं और जो दूसरे नुकसानात हुए हैं, ये माली और यानी जानी और माली जो घरों के नुकसानात के अलावा, उसके लिए एक सर्वे किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरा गाँव में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने के लिए फौरी तौर पर मजीद 2 कश्तियों और राशन की फराहमी के अहकामात जारी किए। पूरे पाकिस्तान में कोई 300 से ज़ायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। यहाँ बलूचिस्तान में तकरीबन 124 लोग, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनमें मर्द हज़रात, बुज़ुर्ग, बच्चे शामिल हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और कई बेशुमार ज़ख्मी हुए हैं। तो यानी जो माली मुआवजा जो है, ये किसी इंसान की जानी नुकसान का कोई कॉम्पनसेशन नहीं होता। वो उनके प्यारे ज़िंदगी भर जो बिछड़ जाने वालों को हमेशा याद रखते हैं, लेकिन बहरहाल जिंदगी गुजारनी। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने फौरी तौर पर मुतासरा गाँव और दीगर सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए टीमों को रवाना कर दिया। आलमी इदारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दुनिया का दर्जा हरारत 1 दर्जे से कुछ ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके इंतहाई मनफी असरात हम देख रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ये 2 दर्जे तक बढ़ गया तो इसके नाकाबिल तलाफी नुकसानात हो सकते हैं। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के झलमक्सी के गांव शंबानी के दौरे के दौरान हिदायत पर फौरी अमल दरामद करते हुए दूसरा मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया है। शंबानी में मुतासरीन के इलाज के लिए अद्वियात भी पहुंचा दी गई हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया की तरफ से इमदादी कार्रवाइयों के लिए मजीद 2 कश्तियां फराहम की गई हैं। मवेशियों के इलाज मुआवजे के लिए वेटरनरी डॉक्टर भी मुतासरा गाँव पहुंचा दिया गया है।
بلوچستان میں بارش اور سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پاک فوج، بحریہ، فضائیہ اور سول اداروں کا ریلیف آپریشن جاری ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں میر سلام جوگزئی۔ بلوچستان میں جاری مونسون بارشوں سے صوبے میں وسیع پیمانے پر نقصانات ہوئے اور اب تک 120 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ 70 سے زائد زخمی ہوئے ہیں اور 12,000 سے زائد مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ مواصلات کا نظام بھی متاثر ہوا ہے۔ حکومت بلوچستان نے لازمی سروسز کے محکموں کے سرکاری ملازمین کی چھٹیوں پر بھی پابندی لگا دی۔ رین فال کی وجہ سے اور جتنے نقصانات ہوئے ہیں بلوچستان میں، تو نقصانات تو پورا نہیں کر سکتے ہیں، جتنا انسان کے بس میں ہوتا ہے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دے دیں۔ صوبہ بلوچستان کے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت، پاک فوج اور دیگر متعلقہ ادارے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں دن رات مصروف عمل ہے اور پاک فوج، بیریا، FCC بلوچستان اور حکومت بلوچستان کے ہیلی کاپٹر سخت موسمی حالات کے باوجود ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ مزید بارشوں کی پیشنگوئی کے پیش نظر حکومت نے عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ میر سلام جوگزئی، PTV نیوز، کوئٹہ۔ پاک فضائیہ کی سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایئر چیف کی ہدایت پر فضائیہ کے اہلکار اور ہیلی کاپٹرز فلیٹ بلوچستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی میں مصروف ہیں۔ 2 دن کے دوران 4200 کلو گرام راشن آفت زدہ علاقوں میں تقسیم کیا گیا، جس میں آٹا، گھی، چینی، دالیں اور دیگر بنیادی اشیاء شامل ہیں۔ ریلیف آپریشن میں متعدد خاندانوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرا عظیم نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ محدود وسائل کے باوجود متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدام یقینی بنا رہے ہیں۔ جو ریسکیو ٹیمز ہیں وہ لسبیلا میں، کچھی میں، خزدار میں، نوشکی میں، جتنے بھی زیادہ کرٹیکل علاقے ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ ٹینٹس ابھی تک جو ہیں وہ 12,225 کے قریب ہیں۔ فوڈ پیکٹس جو ہیں وہ 17,387۔ موجودہ حکومت بلوچستان کی لانگ ٹرم پلاننگز بنا رہی ہے۔ بیٹر پلاننگ کر کے ہم نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی۔ PDMA کے مطابق مختلف اضلاع میں 100 سے زائد مکانات مکمل تباہ ہوئے، جبکہ 200 سے زائد کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ خیبر، مانسہرہ، بنیر اور دیگر متاثرہ علاقوں میں امدادی اشیاء کی تقسیم جاری ہے۔ آئندہ 48 گھنٹے میں دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور ناظرین، حالیہ بارشوں کے باعث دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ڈراوی، ستلج، جہلم میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ PDMA کے مطابق ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے سیلابی علاقوں سے پانی کا اخراج جاری ہے اور سیلاب متاثرین کو محفوظ جگہ پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ متاثرین کو کھانے پینے سمیت تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ PDMA کا کہنا ہے کہ مزید بارشوں سے کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے، تاہم کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ ادارے الرٹ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے دادو اور جام شورو کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں شراز علی۔ سندھ میں حالیہ مونسون کی بارشوں کے بعد مختلف علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے۔ منچھر جھیل میں پانی کی آمد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور منچھر جھیل کا دورہ کیا۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سندھ حکومت کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں کے جو لوکل ہیں انہوں نے بھی ایشوز بتائیں کہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی یہ جب 2010 کے فلڈ کے بعد منچھر میں بریچ ہوا تھا، اس بند کو مضبوط کیا اور اس وقت سے تقریباً 12 سال گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے شکر کیا اس سال بھی انشاءاللہ تعالی کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیون منچھر جھیل کا فضائی دورہ کیا اور متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دراوٹ ڈیم اور تھانو بلا خان کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو دراوٹ ڈیم میں پانی کی آمد اور بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال اور نقصانات کے حوالے سے بریف کیا گیا۔ حالیہ بارشوں سے ٹھٹا کے علاقے کیٹی بندر اور گھارو بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ان علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا اور نکاسی آب کے عمل کو مکمل کیا گیا۔ تاہم گھارو شہر کے نشیبی علاقے اب بھی زیر آب ہیں، جہاں لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں اور دکانوں میں پانی داخل ہونے سے لوگوں کا
करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान भी हो गया है। इस वक्त भी काफ़ी ऐसी कच्ची आबादियाँ हैं जहाँ पर लोग अभी भी पानी में जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 90% हमारा गारो शहर क्लियर हो चुका है। बाकी जो नीचे इलाके हैं उनमें पानी है, उस पर भी मोटरें लगी हुई हैं। बारिशों के खत्म होने के बाद कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह समेत मुख्तलिफ शहरों में मसरूफ शाहराहों से निकासी आब मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि कुछ शहरों के नशेबी इलाकों में अब भी बारिश का पानी मौजूद है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुल्क भर में शदीद बारिशों के बाद दरिया सिंध में गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज के मकाम पर पानी की सतह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने अपने हल्के पन्नुआकल पहुंचकर मकामी इंतजामिया के हमरा हालिया तबाहकुन बारिशों का जायजा लिया। इस मौके पर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और हम अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। खुर्शीद शाह ने कहा कि मकामी इंतजामिया की मदद से अवाम के नुकसान का अजाला करेंगे। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। उधर गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे में सैलाबी सूरत हाल से अमलाक को नुकसान पहुंचा है। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली आलम। जिले गांचे में हालिया तूफानी बारिशों से सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। कुनेस गांव में सैलाब ने 27 और बलगार में 15 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 30 घरानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। दरियाई शोक में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुर से रईशा गांव में दरियाई मशबरों पर तामीर हिफाजती बंद टूट गया है, जिससे दरिया का पानी आबादी में दाखिल हो गया है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोग महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। सैलाबी रेले से खपलू, कुनेस, बलगार और गुरसे में खड़ी फसलें और दरख्तों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में राबिता सड़कें भी तबाह हो गई हैं। बारिश और सैलाब से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इधर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुतासरा इलाकों में खेमों की तकसीम का अमल शुरू कर दिया है। सूबाई वज़ीर बरक़ियात मुश्ताक हुसैन ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने की हिदायत कर दी है। मोहम्मद अली आलम, PTV न्यूज़, गांचे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में मानसून का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान तख्तबाई में 55 मिलीमीटर, डेरा गाजी खान 18, टोबा टेक सिंह 12, नारोवाल 11, कोयटा 10 मिलीमीटर, कलात 8 और सिब्बी में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सैदो शरीफ, मानम जब्बा, पेशावर, गुजरात, झंग, सियालकोट, बहावलनगर, साहिवाल, मंडी बहावतीन, बहावलपुर, दालबंदीन, गवादर, खुजदार, मुजफ्फराबाद, कराची और मिट्टी में कहीं रिमझिम और कहीं मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर इलाकों के नदी नालों में तोगयानी से नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा है। बारिश के बायस कश्मीर, गलियात, मरी, एबटाबाद, मानसेरा, चल्लास, द्यामिर, गिलगित, हुंजास्तोर और स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसदादी पोलियो मुहिम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी इमरजेंसी प्लान मुरतब किया जा रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे की मुहिम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी हंगामी इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स के साथ अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला भी दिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में पोलियो के खात्मे समेत अवामी सेहत के मुख्तलिफ जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मुख्तलिफ शोबों में पहले से जारी इश्तराक का मज़ीद वसअत देने के आज़म का अदा किया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान को बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। मुल्क की नजरियाती बुनियादों को खोखला करने के लिए ममनुआ फंडिंग इस्तेमाल हो रही है। पेशावर में शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गैर मुल्की एजेंडे की बात करने वाले के अपने घर का किराया अमरीका से आता था। मजीद तफसील बताएंगे मुदस्सर खान। मुफ्ती महमूद मरकज़ पेशावर में साबिक सूबाई वजीर फ़ख्र आज़म के जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत में शामिल तमाम जमातों का एक ही एजेंडा और मकसद है कि गुज़श्ता 4 सालों के दौरान मुल्क को जिस दलदल में धकेला गया, इससे मुल्क को निकाला जाए। मौजूदा हालात में हम मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक आईडीज और झूठे बयानिए से कोई पॉपुलर नहीं बन जाता। चेंज रजीम कौन है, किसके खिलाफ साजिश हुई है? कहते हैं बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत मुझे इक़्तिदार से निकाला गया। बैनुल-अक़वामी ताकत के जरिए आपको नहीं निकाला गया, बैनुल-अक़वामी ताकत के जरिए आपको लाया गया था। हम तुम्हारी असलियत को जानते हैं,
مولانا فضل الرحمان نے کہا بیرونی ایجنڈے کے تحت ملک پر مسلط کیے گئے عمران خان نے تہذیب کو ختم کر دیا ہے۔ 2013 میں ایک وفد نے آ کر مجھے خود بتایا تھا، جو ان کی وکالت کر رہا تھا، اور مجھے کہا کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے زیادہ مناسب اور آدمی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم عدلیہ اور دوسرے ریاستی اداروں کی توقیر کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ مدثر خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان نے بال ٹیمپرنگ کے ساتھ فن ٹیمپرنگ اور سیاسی ٹیمپرنگ بھی کی۔ دوسروں سے منی ٹریل مانگنے والا عمران خان اپنی منی ٹریل دینے سے گھبرا رہا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں طاہر جعفری سے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ فائنینشل ٹائمز میں عمران خان کی فورن فنڈنگ کی خبر شائع ہو چکی ہے۔ عمران خان نے اسرائیل اور بھارت سے فورن فنڈنگ لے کر سیاست کو ٹیمپر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ان بیرونی طاقتوں سے فورن فنڈنگ لی جو پاکستان کو کمزور کرنے کی خواہاں ہیں۔ تاثر ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کی دھمکیوں کے باعث فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں سنا رہا۔ آج پوری دنیا کے اندر عمران نیازی صاحب کی منی لانڈرنگ اور پاکستان کی سیاست میں کس طریقے سے بیرونی فنڈنگ کے ذریعے انہوں نے انتشار پیدا کیا، یہ موضوع زیر بحث ہے۔ اسی طرح پچھلے 7 سالوں میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، الیکشن کمیشن، ہر جگہ یہ ثبوت پیش کیے گئے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان دشمن لابیز سے ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے کرکٹ کے اندر بال ٹیمپرنگ کے الزامات کا سامنا کیا، اس کے بعد فنڈنگ کو ٹیمپر کیا اور غیر قانونی ذرائع سے فنڈ ٹیمپرنگ کی، اور بال ٹیمپرنگ، فنڈ ٹیمپرنگ کے نتیجے میں سیاسی ٹیمپرنگ کی۔ 2018 میں انتخابی نتائج کو ٹیمپر کیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے ایسے عوام دشمن فیصلے کیے جن سے ملک میں بے یقینی اور مصنوعی مہنگائی ہوئی۔ حکومت کی کاوشوں سے ملکی معیشت آئندہ چند ماہ میں مستحکم ہو جائے گی۔ اب ہم ایک بحالی کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگست میں جب IMF کے بورڈ سے منظوری ہوگی اور جو پاکستان کے دوست ممالک بھی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے جو مواقع پاکستان کے لیے کھل رہے ہیں، اس سے جو پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آئے گی، پاکستان کی معیشت اگلے 4 سے 6 ماہ کے اندر استحکام کی طرف انشاءاللہ تعالی آ جائے گی، اور آپ اس کے نتیجے میں دیکھیں گے کہ روپیہ جو ہے وہ بھی اپنی قدر واپس حاصل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو عمران خان کے انتشار کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ پنجاب کے ساتھ جو تماشا لگایا گیا وہ قوم کے سامنے ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عام انتخابات کسی کی خواہش پر نہیں، آئین کے مطابق مقررہ پر ہوں گے۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ $250 ملین کی منی لانڈرنگ کرنے والا صادق اور امین کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران خان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تو 250 کنال کے گھر کے اخراجات کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے PTI کو دی گئی ممنوعہ فنڈنگ کو بے نقاب کیا۔ تفصیل بتائیں گے سمیع اللہ۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب میں پیٹرولیم کے وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ امریکی عدالت سے عمران خان کے دوست عارف نقوی کو 290 سال کی سزا ملنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عارف نقوی نے عمران خان کو $250 ملین دیے تو پھر وہ کیسے صادق اور امین ہو سکتے ہیں؟ جو ایسے جرائم کر رہا ہو جن کی سزا 290 سال بنتی ہے، وہ شخص پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا، اس شخص کے متعلق وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میرا 25 سال پرانا دوست ہے، صرف دوست نہیں بینیفیکٹر ہے۔ ابراج انویسٹمنٹس کے اکاؤنٹ سے نکال کے 2 ملین پاؤنڈ جو ہیں عمران خان صاحب کو بھیجے PTI کے اکاؤنٹ میں اللیگلی منی لانڈر کر کے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ برطانیہ میں منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجے گئے $250 ملین حکومت پاکستان کو واپس کیے گئے، لیکن عمران خان نے یہ رقم بحریہ ٹاؤن کو واپس کر دی، اور وہ پیسہ آج ملک ریاض صاحب کے بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ مگر اس کے چند ہی دن کے بعد 400-450 کنال زمین ملک ریاض صاحب نے دے ڈالی، کسے؟ عمران خان اور ان کی زوجہ۔ وہ بیرسٹر جس کو
गुड फेथ में बुलाया गया कि भाई हुकूमत की मदद करो, तुम उस तंजीम के में मुलाजिम हो जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था, वो फरार हो गया। अगर ये सब मुजरिम नहीं थे तो ये फरार क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर मुल्क से फरार हो चुके हैं और लगता है कि अब इमरान खान के फरार होने का वक्त आ चुका है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी फॉरेन फंडिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। कौम को ईमानदारी का लेक्चर देने वाले इमरान खान को ममनुआ फंडिंग का हिसाब देना होगा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई फंडिंग केस का जल्द फैसला सुनाए, इस बारे में रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। साबिक गवर्नर सिंध और नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने का मुतालबा किया। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि 8 साल से ममनुआ फंडिंग केस का मामला उलझा हुआ है। इमरान खान कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी इलेक्शन कमीशन जाते हैं। अब फाइनेंशियल टाइम्स की खबर को भी केस का हिस्सा बनाया जाए। इमरान खान सच्चे हैं तो अखबार के खिलाफ केस करें। दफा फिर हम इलेक्शन कमीशन से भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सूम होते हैं, क्यों नहीं बुलाते इमरान खान को? वो कौन है भाई? सारे पाकिस्तानी हिसाब किताब देते हैं तो वो इमरान खान क्यों नहीं हिसाब किताब दे सकता कि जी ही इज अबव द रेस्ट? ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए एक कानून। नवाज शरीफ के केसेस का हवाला देते हुए कहा कि अब पार्टी लीडर हिसाब देने से भाग रहा है। हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान हिसाब दें। अगर मियां नवाज शरीफ का आपने इतने साल तक 92 में पहली दफा उनको फारिग किया, हिसाब किताब मांगा, 99 में फारिग किया, हिसाब किताब मांगा, 2017 में फारिग किया, हिसाब किताब मांगा। हमने तो हमेशा हिसाब किताब, जेलों में भी गए, एक्साइल में भी गए, केसेस भी चले, रेफरेंसेस भी हुए। तो हम जब डरते नहीं है, हम जब तलाशी देने के लिए तैयार है, तो आप क्यों नहीं तलाशी देते? दे दें तलाशी। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान को सादिक व अमीन का लकब दिया था, कौम ने नहीं। इमरान खान कानून से बालातर नहीं। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। और एग्जी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी। इत्तेहादी हुकूमत माशी चैलेंजेस के हल के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि कानून यकसां इत्तलाक जरूरी है। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। हमें ये पता था कि क्या हालात है मईशियत का, मगर मैं आपको वसूख से कहता हूँ, अगर आज तक ये 3 महीने भी होता तो आज वो डॉलर 400 से भी और पाकिस्तान को दिवालिया होना था। अल्लाह का एहसान है, हम अगर आए, अगर पाकिस्तान रहे तो सियासत रहेगा। हम सियासत के लिए नहीं, पाकिस्तान बचाने के लिए आए। अगर एक तरफ इमरान खान की तरफ चोर और झूठा लीडर है, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह लीडरशिप भी इस मुल्क में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में मौके पर इख्तियार किया गया है कि स्पीकर के इलेक्शन में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, इसलिए अदालत इसे कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाब का हुक्म दे। रिपोर्ट करेंगे नवीद हयात। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन हुसूसी अताउल्लाह तारर ने कहा कि स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है, लेकिन बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। हमारी इस्तदा इस रिट पिटिशन के जरिए ये है कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं करवाया गया और खुफिया रायशुमारी का जो एक असूल है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। ये चंद दिन के मेहमान हैं, ये धांधली करें, ये ज़ाती मुलाजमों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगाएं, ये अपने बेटे मोनस के लिए दोबारा से करप्शन का बाजार गर्म करें और फराग गोगी को NRO दें। अताउल्लाह तारर ने कहा कि पंजाब की मौजूदा हुकूमत एक वोट से चल रही है जो ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशूद अहमद ने कहा कि आज तक ऐसे खुलेआम धांधली नहीं देखी। जिस तरह बैलेट पेपर्स पर नंबरिंग की गई, इससे पूरा इलेक्शन कालादम होता है। पिछले 2 दिन के अंदर जो सैकड़ों हजारों तबादले किए जा रहे हैं, जो गैर कानूनी इकदामात किए जा रहे हैं, पंजाब के अवाम भूख से मर रहे हैं, उनको सब्सिडी नहीं दी जा रही। ऐलान क्या किया जा रहा है कि अरबों रुपया हम अपने MNAs MPAs को देने जा रहे हैं। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि पंजाब असेंबली के अंदर तब तक मजीद कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब तक स्पीकर के मामले का फैसला ना हो जाए। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर।
क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का किरदार रोज़े रोशन की तरह आया है, जिसने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया और जनूबी एशिया के मुसलमान एक अलहदा वतन के हुसूल में कामयाब हुए। तफसील बता रहे हैं अनीसुर रहमान। बड़े सगीर की सियासी कुव्वत कांग्रेस मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हुई तो उस वक्त के बड़े मुस्लिम कायदीन ने कांग्रेस को खैरबाद कहा और मुसलमानों की सियासी बेदारी के लिए इन्हें एक नए तामीरी रास्ते पर गामजन करने का आज़म किया। इस दौरान कांग्रेस के दोहरे मयार, आर्य समाज तहरीक और गाय की कुर्बानी के मामले ने जलती पर तेल का काम किया और जनूबी एशिया के मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की दागबेल डाली। 1906 में कायम होने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने तो जैसे आज़ादी के मुतलाशियों में एक नई रूह फूंक दी और वह अलहदा वतन के असूल के लिए एक नए जोश और वलवले के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़े। कुदरत भी जनूबी एशिया के मुसलमानों पर मेहरबान हुई और मुस्लिम लीग को कायदे आज़म और इलामा इकबाल जैसे रहनुमा मिले, जिनकी अनथक मेहनत और वलवला अंगेज क़यादत ने मुसलमानों को मुत्तहिद कर एक वाज़िया सिमत मुतय्यन की। 1937 की कांग्रेसी वजारतों के मजालम के बाद कायदे आज़म ने एक वाज़े डायरेक्शन लेकर एक नया नारा मुसलमानों को दिया, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस झंडे के तले मुसलमानों को जमा किया पूरे हिंदुस्तान को और फिर 1946 में इसी नारे की बिना पर पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों की तमाम मुस्लिम नशिस्तें जो थी वो जीती। आज भी कायदे आज़म और उनके रुफ़क़ा के मुतय्यन किए गए सुनहरी असूलों पर अमल करके पाकिस्तान को आलमी बरादरी में नुमाया मुकाम दिलाया जा सकता है। अनीसुर रहमान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। काबिज भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला बारामूला में एक नौजवान को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक फौजियों ने नौजवान को जिले के इलाके वानीगाम बाला में मुहासिर और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इससे कबल इसी इलाके में एक हमले में 2 भारतीय फौजी और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। सफाक भारतीय हुक्काम ने गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को अस्पताल से वापस नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया। मोहम्मद यासीन मलिक को जेल में भूख हड़ताल के बायस तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वो अपने खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमात में मुनसिफाना ट्रायल न मिलने के खिलाफ भूख हड़ताल पर है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत, भारतीय फौज, अदलिया और दीगर तमाम इदारों ने मजलूम कश्मीरियों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। भारत में मुसलमानों को हर लिहाज से तंग करने का सिलसिला जारी है। सबसे बड़ी अक़लियत के साथ हुक्मरानों के नारवा सलूक में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रियासत हरियाणा में कोविड के बायस खुले मकामात पर नमाज जुमा अदा करने पर जो तनाज़ा खड़ा हुआ वो अब मुल्क के दीगर हिस्सों तक पहुंच गया है। लखनऊ के एक मॉल में नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल होने के बाद मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्जामात लगाकर मुकदमा दर्ज किया गए, जिसके बाद लखनऊ, आगरा और हरिद्वार से अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 माह कबल आगरा में भी सड़क पर नमाज पढ़ने की वजह से 150 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत कार्रवाई की गई। 19 मई को हैदराबाद के 4 सयाहों को ताजमहल में नमाज पढ़ने पर जेल भेज दिया गया। भारत में जहां अक़लियतों के साथ इंसानी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, वहीं नमाज को भी मुतनाज़ बनाकर मुसलमानों को इबादत से रोकने जैसी घिनौनी हरकत की जा रही है। मुबस्सिरीन इस अमल को हुकूमत की जानिबदारी करार देते हुए कहते हैं कि जब दीगर मज़ाहिब के लोगों को अवामी मकामात पर मजहबी रसूमात की अदायगी की इजाज़त है तो फिर एक मखसूस मजहब के मानने वालों की इबादत में खलल क्यों डाला जाता है। भारत की रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों ने एक दुकान के बाहर छुरियां के वार करके मुसलमान नौजवान को कत्ल कर दिया। 23 साला नौजवान फाजिल अपने दोस्त के साथ पैदल जा रहा था कि हिंदू इंतहा पसंदों ने किसी वजह के बगैर उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। भारतीय मीडिया का कहना है कि हिंदू इंतहा पसंदों ने मरने के बाद भी उसकी लाश की बेहुरमती की और उसे ठोकरें मारते रहे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हुकूमत ने बीजेपी रहनुमा नौपुर शर्मा के नाजेबा बयान के खिलाफ एहतजाज की पादाश में 5 मुसलमानों के खिलाफ काले कवानीन, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA और गैंगस्टर्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। नौपुर शर्मा के नाजेबा बयान के खिलाफ गुज़िश्ता माह 3 जून को उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में बेगूनगंज इलाके में मुजाहिरा किया गया था, जिसमें पुलिस अब तक 60 मुसलमानों को गिरफ्तार कर चुकी है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि सिविल एविएशन और PIA को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। तफसील जानते हैं ताहिर कलासरा से। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रनवे की अपग्रेडेशन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए हवाबाजी और रेलवे के वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इदारों की कारकर्दगी और इस्तेताद कार में इजाफा हमारी हुकूमत का अज़्म है। उन्होंने कहा कि माजी में होने वाली सियासी भर्तियों ने इदारों की कारकर्दगी को मुतासर किया।
मगर अब सरकारी इदारों में सिर्फ और सिर्फ मेरिट का बोलबाला होगा। वफाकी वजीर ने कहा कि कराची एयरपोर्ट के रनवे की अपग्रेडेशन का काम इसी साल शुरू होगा, जबकि क्वेटा और फैसलाबाद के एयरपोर्ट्स को भी वसी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि करदू, गिलगित और चित्राल एयरपोर्ट्स की अपग्रेडेशन भी की जाएगी, जबकि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलतों में भी इजाफा किया जाएगा। इससे कबल वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने नए तामीर होने वाले मरकजी रनवे का इफ्तिताह किया। अपनी नौयत के इस जदीद रनवे को वसी किया गया है। इससे धुंध के दौरान जहाज की महफूज लैंडिंग मुमकिन हो सकेगी। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज, लाहौर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तमाम दाखिली और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर दाखिला ने हज के लिए बेहतरीन इंतजामात और रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के कामयाब इनेकाद पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद दी। सऊदी सफीर ने बताया कि रवा साल पाकिस्तान से 80,000 से ज़्यादा हज ज़ायरीन ने रोड टू मक्का सहूलत से इस्तिफादा किया। खाना काबा के गिलाफ की तब्दीली की पुरवकार और रूह परवर तकरीब हरम शरीफ में हुई। गिलाफ काबा, जिसे कस्बा भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 14 मीटर और मुहित 47 मीटर है। गिलाफ काबा के लिए 670 किलोग्राम खालिस स्याह रेशम पर 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी की तारों से आयात कुरानी कशीदा की गई हैं। गिलाफ काबा का वजन 850 किलोग्राम है और इसकी तैयारी पर $65 लाख की लागत आई। इससे कबल गिलाफ काबा हज के मौके पर तब्दील किया जाता था, लेकिन ये पहली बार है कि इसे नए इस्लामी साल के आगाज पर तब्दील किया गया है। गिलाफ काबा की तब्दीली का अमल नमाज इशा के बाद शुरू हुआ। और नाज़रीन, अभी आपको आगाह करेंगे कि इस्लामी तारीख में मुहर्रम उल हराम का करबला के साथ बहुत अहम ताल्लुक है। मुहर्रम के साथ ही करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर 11,000 से ज़्यादा मुतवल्ली ज़ायरीन की खिदमत के लिए तैयारियों का आगाज़ कर देते हैं। तफसील बता रहे हैं इराक से हमारे नुमाइंदे सुहेल बुखारी। दुनिया तलाश करती है खुशियाँ तमाम उम्र, हमको गमे हुसैन तेरा इंतज़ार है। आलम इंसानियत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी एक ऐसी कुर्बानी है जिसकी मिसाल कभी ना मिल सकेगी। मुहर्रम की तैयारियां ईद उल अज़हा के बाद ही शुरू कर दी जाती हैं। गमखारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बड़ी तादाद, जो कि लाखों करोड़ों अफराद पर मुश्तमिल होती है, वो मुहर्रम शुरू होते ही करबला की तरफ गामजन हो जाती है। 11,000 अफराद के करीब मतवल्ली, खादमीन, ज़ायरीन इमाम हुसैन की खिदमत के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। दुनिया भर से ज़ाहिरीन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए करबला में दाखिल होते हैं। इराक के मुकामी लोग भी ज़ायरीन की खिदमत के लिए हर वक्त मसरूफ़ अमल रहते हैं। इस वक्त इराक के मुख्तलिफ अज़ादार संगतें ज़ायरीन को खाना खिलाने और सबील का एहतमाम करने के इंतज़ामात में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं और ज़ायरीन को खुश आमदीद कहते हुए ए ज़ायर हुसैन अस्सलाम, ए ज़ायर हुसैन अस्सलाम की सदाएं दे रहे हैं। मुहर्रम उल हराम के दौरान कोयटा में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। वकार अहमद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मुहर्रम उल हराम में कोयटा में कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। आशूरा के दौरान 4,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए मुतय्यन होंगे। ये शोर करवाता हूँ, अल्लाह ताला के फजल करम से कोयटा के हालात भी इंशाअल्लाह ताला हमने पूरे इंतजामात किए हुए हैं। पूरा हमने सिक्योरिटी प्लान बनाया हुआ है, फुल प्रूफ हमारी सिक्योरिटी है और हर हवाले से जितनी भी लूप होल्स हैं पिछले सालों को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम लोग कोशिश करेंगे कि गलतियों को ना दोहराएं। कोयटा में आशूरा मुहर्रम के जुलूस के रूट पर 600 क्लोज सर्किट कैमरे भी लगाए जाएंगे। सिक्योरिटी प्लान उलेमा और सिविल सोसाइटी की तजावीज़ की रोशनी में तैयार किया गया है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। मजलिस उलमा कराम बलूचिस्तान के ज़रिए तमाम कोयटा में पैगाम पाकिस्तान और इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि इस्लाम अमन का दीन और इंसानियत की भलाई का दर्स देता है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम में अमन को बरकरार रखना तमाम मकातब फ़िक्र की जिम्मेदारी है। इस मौके पर दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि बाहमी इत्तेहाद से इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों को शिकस्त दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमन और दिफा वतन के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं।
आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ रावलपिंडी में मुहर्रम उल हराम में होने वाली मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से उलमा, मशाइख, अंजुमन ताजरान रावलपिंडी और ज़राई अमन कमेटियों की तरफ से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए पीर सैयद नकीबुर रहमान ने कहा कि इस्लाम अमन और सलामती का दीन है जो न सिर्फ इंसानों बल्कि हैवानों के साथ भी रहम और शफकत और नरमी करने की तरगीब देता है। उन्होंने कहा कि अमन और अमान कायम रखने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। फिरकावारियत को रोकना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। और अब बात हो जाए कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। वायरस के बायस मजीद 3 अफराद जान बाहक हो गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 19,236 अफराद की टेस्ट किया गया, जिनमें से 605 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए। शरह 3.15% रही। वायरस से 176 अफराद की हालत तशवीशनाक है। वजारत सेहत और NCOC ने कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज के साथ ज़वाबित-ए-कार पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया है। शहरियों की सहूलत के लिए सियालकोट में भी नादरा एग्जीक्यूटिव सेंटर ने काम शुरू कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर नादरा हुकाम ने वज़ीर दिफा को एग्जीक्यूटिव सेंटर में फराहम की गई सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने नादरा की काविशों को सराहते हुए कहा कि हुकूमत अवाम की सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने कहा कि मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। जल्द समरात सामने आएंगे। कराची में ब्रांड्स ऑफ द ईयर अवार्ड तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं जीशान अहमद। तिजारत और सरमायाकारी के वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर ने ब्रांड्स ऑफ द ईयर अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुश्किल फैसले मईशत की बेहतरी के लिए किए हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान को जल्द ही महंगाई और माशी बहरान से निकाल लेंगे। Proud of the fact that these are the people that internationally are recognized as Pakistan. For me, as the Minister for Commerce, it definitely is something to be proud of, that these categories, they may be in apparel, they may be in food processing, they may be in digital economy, they also on. Each one of them shows a future path for Pakistan. Each one of them shows that indeed we as Pakistan can stand shoulder to shoulder with any economy of the world and sell our product. We just have to market it right. We just have to project it right. वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी ब्रांड्स आलमी मयार के हैं और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तानी मसनूआत को एक्सपोर्ट करने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड तकरीब में पाकिस्तानी ब्रांड्स की हौसला अफजाई हुई है। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए गए। तकरीब में नामवर अदाकार जावेद शेख और मारूफ क्रिकेटर वसीम अकरम और सरफराज अहमद समेत दीगर अमायदीन शहर ने शिरकत की। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पेशावर में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम की सदारत में होने वाले इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए आवाम को रिलीफ की फराहमी का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि जून से लेकर अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 10 किलो आटे के 14,26,000 थैले तकसीम किए जा चुके हैं। आवाम की सहूलत के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के साथ दूर दराज इलाकों में सेल पॉइंट्स और मोबाइल स्टोर्स के जरिए भी आटा फराहम किया जा रहा है। इंजीनियर अमीर मकाम ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हुकाम को हिदायत की कि शहरियों को रियायती नरखों पर खाने पीने की बुनियादी अशिया फराहम करने के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि नौजवान मुल्क का कीमती असासा है। तलबा को जदीद तकाज़ों के मुताबिक डिजिटल स्किल्स की तालीम देना वक्त की अहम ज़रूरत है। कोडी स्किल्स यूथ एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने साबका एतवार में होनहार तलबा को लैपटॉप देने समेत अरफा करीम IT टावर और PITB को बाइख्तियार बनाने जैसे इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम से IG बरामदात समेत नौजवान नस्ल के लिए रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे। प्रोग्राम के तहत 20 लाख नौजवान, घरेलू खवातीन और मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और फ्रीलांसिंग की तरबियत दी जा रही है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने कहा है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तानी बरामदात में गुज़श्ता साल की निस्बत 35% इजाफा हुआ है। एक बयान में पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन कुल तिजारती हजम बढ़कर $12 अरब हो गया है, जो गुज़श्ता साल तकरीबन $9.5 अरब रहा।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का दिन मनाया गया। दिन मनाने का मकसद गुलामों की तिजारत के अलमिये और इसकी ममानियत से मुतालिक शऊर उजागर करना है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग की लानत से निपटने के लिए पुरअज़्म है। तफसील बता रहे हैं फहद जावेद। इंसानों की स्मगलिंग पाकिस्तान समेत दुनिया भर का मसला है, जो कि बैनुल-अक़वामी मईशत में अरबों डॉलर के कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये घिनौना कारोबार जराइम की दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और तेजी से फैलने वाला कारोबार है। किसी माशरे में जहालत, माशरती नाहमवारियाँ और बेरोजगारी जैसी बुराइयाँ जराइम की परवरिश करती हैं। गुर्बत मिटाने और सुहाने ख्वाबों की तकमील के लिए हर साल लाखों अफराद इंसानी स्मगलिंग के माफिया का निशाना बन जाते हैं। इस मकसद के लिए अपनी तमाम जमा पूंजी गंवाने वालों का डिपोर्ट होना ही मुकद्दर बन जाता है। आलमी सतह पर इंसानी स्मगलिंग को बाकायदा एक जुर्म करार दिया गया है। दुनिया भर में उठने वाले बुरानों की वजह से इंसानी स्मगलिंग अब आम हो चुकी है। तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी इन इक्तसादी महाजरीन के खिलाफ अपनी पॉलिसियां सख्त कर दी हैं। इंसानी स्मगलिंग की घिनौनी सरगर्मियों से अवामुन्नास को बाखबर रखने और उनमें शऊर उजागर करने के लिए मौसर मुहिम चलाने की जरूरत है। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो इंतहाई मजबूत और अहम गर्दाना जाता है। इस अनमोल रिश्ते की अहमियत उजागर करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दोस्ती का दिन मनाया गया। दोस्ती की अहमियत और ज़रूरत के हवाले से देखिए लाहौर से बरता सलीम की रिपोर्ट। दोस्ती एक ऐसा मुकद्दस नाता है जिसकी हर जी शऊर को ज़रूरत होती है। दोस्ती खूनी रिश्ता तो नहीं, मगर बाज़-औक़ात तमाम रिश्तों से ज़्यादा गहरा और मजबूत महसूस होता है। जब ज़िंदगी के नशेबो फ़राज से तंग आकर थक जाएं तो ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है जो ज़िंदगी को फिर से जीने का सहारा दे। ये लम्स उस मुखलिस दोस्त का है जो हर वक्त साए की तरह अपने दोस्त के साथ होता है। इस दिन को पहली बार 2011 में मनाने का फैसला किया गया ताकि दोस्ती जैसे मुकद्दस रिश्ते की अहमियत और दोस्तों को खराज तहसीन पेश किया जाए। दोस्ती ख्वाब भी है और ख्वाब की ताबीर भी है, रिश्ता इश्क भी है और याद की जंजीर भी है। आज के तेज रफ्तार दौर में जहां हर हाथ मिलाने वाला दोस्त तो नहीं होता, लेकिन अगर किसी को सच्चे दोस्त का हाथ मिल जाए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे दोस्त मेरे जैसे, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसी मैं हूँ वैसे ही वो हैं। एक अच्छा दोस्त आपकी ज़िंदगी संवार भी सकता है और उसी तरह एक अगर आपकी लाइफ में कोई बुरा दोस्त आता है तो आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद भी कर सकता है। दोस्त दुख सुख के साथी होने के साथ साथ कुदरत का हसीन तोहफा भी है जिसकी सिर्फ कदर करने की ज़रूरत होती है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वासिक क़य्यूम पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादी जमातें स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब में खुफिया राय शुमारी की गैर शफाफियत के बायस अदालत में हैं। इसीलिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया और उनकी तरफ से किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। वासिक क़य्यूम कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। और अब कुछ मौसम से मुतालिक जानते हैं कदीर से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नुकंडी 43 और चल्लास में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 31, लाहौर 34, कराची पेशावर 31, कोयटा गिलगित 33, मुजफ्फराबाद 33, मरी 22, दीर 30, चित्राल 35, रावलाकोट 26, मालम जब्बा 21, फैसलाबाद मुल्तान 35, सरगोदा 34, श्रीनगर 29, जम्मू 33, लह 23, पुलवामा 26, अनंतनाग 28, शुपियां 24 और बारामूला में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मैन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। और अभी आपको बताएं कि रूस ने ताइवान पर चीन के मौक़िफ़ पर उसके साथ यकजहती का इजहार किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने कहा कि रूस वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई इस्तेहकाम का एहतराम करते हैं। रूस समझता है कि किसी भी मुल्क के इस बारे में सवाल उठाने या दीगर इश्तियाल अंगेज इक़दामात करने का हक नहीं है।